हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू अवर चैनल साइंशिया ब्रेनरी। सो इन कंटिन्यूशन विद आवर प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स विच वर इन न्यूज, मींस ड्रेडफुल एग्जांपल्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन आवर लाइफ, ऑन आवर प्लेनेट, विच वर इन न्यूज इन द करंट ईयर इन द 2021। सो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात कर रहे थे कि हाउ द क्लाइमेट चेंज caused the extinction of the species in our ancient past, like woolly mammoth, dinosaurs, primitive human race, and other species. ठीक है, और then we will discuss about the effect of climate change on our glaciers, on our polar regions like North Pole, South Pole. ठीक है, how the Earth lost 28 trillion tons of ice in the past 2 to 3 decades. ठीक है, owing to climate change, which was the result of climate change. And in that context, how means Russia launched its first satellite Arctica M to monitor the climate change in the North Polar region, that is Arctic regions. ठीक है, so in continuation with our previous lectures, we will see in today's lecture some more catastrophic examples of the climate change. कि अभी जो रिसेंट मंथ में ही, रिसेंट लास्ट 1 to 2 वीक्स में, विच वर इन न्यूज, वी कैन से दैट अनदर ड्रेडफुल रिजल्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू put a significant efforts to curb the emission of greenhouse gases. You can see that climate change, it is harming the unborn babies in the Amazonia region of Brazil. ठीक है, it has been popped up that in a study it has been popped up that climate change was responsible for the death of about 1500 peoples in the Britain in the past you can say from 1990s to 2017. They have studied in that study, so you can see that how climate change is affecting, means it is directly affecting the human life, even the humans which have not taken the birth yet. That's why you can see that how it is affecting the unborn babies, and that is really dreadful, ravaging, and we can say that definitely we need to put significant efforts. So in this context, let's see and discuss some these points. So you can see that in the 2nd March, this month only, it was in news of the science article that climate extreme seen harming unborn babies in Brazil's Amazon. ठीक है, और health risks to babies on the front line of the climate change, means the babies and unborn babies, and they are in the front line, means in the front line of climate change effects में. ठीक है, then in another news, जैसे कि मैं बता रहा था कि at least 1500 Britons मतलब ब्रिटेन के जो पीपल हैं, they were killed by climate change which fueled the heat in this century. ठीक है, so let's discuss in brief with these points. So in a study actually which was published in the Nature Sustainability Journal, if you want to go in detail, you can study this paper in full if you want to go detail, that rainfall variability and adverse birth outcomes in the Amazonia. ठीक है, so in the 1st March of this month only, 1st March, this study published in the Nature Sustainability Journal, and according to this study they have linked that जो extreme rain है, they are directly linked with the low birth weight in the Brazil's Amazon region. ठीक है, and which have the long term impact on the human life, those unborn babies on the till their adolescence age. They have it has the long term effect, means we can say that the bad results or bad impact or ramifications of this climate change. So in this study they have found that how जो बर्थ वेट है, जो लो बर्थ वेट हो रहा है, फीटल ग्रोथ है, एंड प्रेगनेंसी ड्यूरेशन, मतलब जो बर्थ का वेट एट द टाइम ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो फीटल का ग्रोथ है, या जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है, क्योंकि जो प्री मेच्योर बर्थ भी हो जा रही है. ठीक है, तो हाउ दीज थिंग्स दे आर अफेक्टेड बाय द लोकल रेनफॉल वेरिएबिलिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द climate change, that variability in the local rainfall, sometimes it's extreme, sometimes it's quite extreme to in the high direction, sometimes it's extreme to in the lower direction. ठीक है, so
इसमें इन्होंने पाया है कि दे डेफिनेटली द एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, जो हाई रेनफॉल है, एंड विच अल्टीमेटली रिजल्टिंग द फ्लड्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन. सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम में अगर एक्सेप्शनल हाई रेनफॉल या जो फ्लड्स आ रहे हैं, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द लो बर्थ वेट एंड प्री मेच्योर बर्थ इन द ब्राजीज नदर्न अमेजोन स्टेट. ठीक है, मतलब कि जो प्रेगनेंसी के टाइम या जो, ठीक है, जो हैवी रेनफॉल हो रहा है या फ्लड्स आ रहे हैं, दे आर डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द लो बर्थ वेट. ठीक है, इन द ब्राजील के जो अमेजोन स्टेट में इन्होंने स्टडी किया है, तो दे हैव फाउंड दिस रिजल्ट्स. ठीक है, सो यू कैन सी दैट हाउ दिस क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग इवन द अनबॉर्न बेबीज. सो दे एक्चुअली व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या किया कि दे स्टडीड, मींस दे एनालाइज्ड अबाउट 3 लाख बर्थ in the past one decade, more than 1 decade, for the past 11 years. They analyzed the 3 lakh birth, मतलब 3 लाख बर्थ को उन्होंने एनालाइज किया इन द पास्ट 1 decade में, एंड विद द लोकल वेदर डाटा विच वाज रिलेटेड टू द रेनफॉल डाटा और अदर डाटा. ठीक है, अदर एनवायरमेंटल डाटा. एंड दे फाउंड दैट जो बेबीज हैं विच टुक द बर्थ आफ्टर द एक्सट्रीम रेनफॉल, दे वर more likely to have the low birth weight. ठीक है, and जो low birth weight है, that is further linked with the worse educational, health and even income attainment as the adult. Definitely कि they have found that जब उन्होंने डाटा एनालाइज किया कि 3 लाख बर्थ को एनालाइज किया फॉर द पास्ट 1 decade, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया स्टडी में कि जो आफ्टर एक्सट्रीम रेनफॉल के बाद जो बर्थ हुई है उस रीजन में, तो उसमें से क्या है कि जो बेबीज थे, दे वर अंडर वेट. ठीक है, दे हैव द लो बर्थ वेट था. ठीक है, एंड इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है कि जो बर्थ रेट लो है, तो डेफिनेटली आपका डेवलपमेंट कम होगा, आपका ब्रेन डेवलपमेंट कम होगा, तो जो कि फर्दर इन लेटर स्टेज में वो अफेक्ट कर रहा है आपकी एजुकेशन को, उन बच्चों की एजुकेशन को, हेल्थ को, एंड इवन द इनकम स्टेटस को. ठीक है, जब वो एडोलेसेंट एज में पहुंचेंगे या अडल्ट एज में पहुंचेंगे. ठीक है, तो डेफिनेटली इट हैज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट फ्रॉम the unborn stage to adolescent age or adult stage. The climate change has a seriously drastic effects. ठीक है, or means we can see that how it is affecting the human life directly actually. So they have, in the study they have concluded the 4 main points actually. So they have said that कि कैसे जो climate extremes हैं, how they are affecting the health of mothers and unborn babies. ठीक है, कैसे वो इफेक्ट कर रहे हैं. एक्चुअली क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जैसे कि देखा एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, फ्लड्स आ रही हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि जो आपका क्रॉप्स हैं जो फेल हो जा रही है, मतलब इट इज कॉजिंग द क्रॉप्स टू फेल. ठीक है, अगर क्रॉप फेल हो रही है तो क्या हो रहा है, तो विच इज फर्दर रिलेटिंग टू द मीन्स रिड्यूसिंग द एक्सेस टू न्यूट्रिशियस डाइट, न्यूट्रिशियस फूड. क्रॉप फेल हो गया तो क्या होगा, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिलेगी, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होगा, एंड उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसका प्रेवलेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, डेफिनेटली डायरेक्ट कॉरिलेशन है. फूड नहीं है, आपकी माल न्यूट्रिशन होगी, इम्यून सिस्टम वीक होगा, जो प्रेवलेंस है इन्फेक्शियस डिजीजेस की वो ज़्यादा होगी. ठीक है, दूसरा पॉइंट कि जो हाई रेनफॉल हो रहा है जो अमेजोन के रीजन में, तो उससे क्या होता है कि हाई फ्लडिंग हो रही है, हाई रिवर फ्लडिंग हो रही है, तो जिससे क्या हो रहा है कि जो उनके हाउस होल्ड हैं, दे आर एक्सपोज टू हाई रिवर फ्लडिंग, एंड जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं. ठीक है, विच इज लीडिंग टू द डेंजर ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेज, एंड विच इज कॉजिंग द आइडियल ब्रीडिंग सिचुएशंस फॉर द मॉस्किटोज, एंड विच रिजल्ट्स इन द आउटब्रेक ऑफ मलेरिया, डेंगू और अदर वाटर बोर्न डिजीजेज. सो डेफिनेटली इन दैट वे आल्सो इट इज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स एंड देयर अनबॉर्न बेबीज. ठीक है, देन अनदर थिंग इज दैट जो फ्लड्स आ रहे हैं या ड्रॉट आ रहे हैं, जो एक्सट्रीम वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल में हो रही है, सो डेट इज अफेक्टिंग देयर लाइव्स आल्सो, क्योंकि डेफिनेटली इफ एक्सट्रीम फ्लड्स, एक्सट्रीम ड्रॉट्स आर देयर, योर क्रॉप फेलियर इज देयर, इट इज अफेक्टिंग यू इन फ्रॉम द ऑल द साइड्स, एवरीथिंग इज लॉस्ट, डेफिनेटली यू विल बी इन द मेंटल स्ट्रेस. ठीक है, डेफिनेटली you will in anxiety all time. So that mental stress and anxiety, that is actually contributing to the premature birth and impair the normal childhood development. मतलब क्या हो रहा है कि प्रीमेच्योर बर्थ हो जा रही है बच्चों की, तो उस वजह से भी जो क्या है वो आगे नॉर्मल अंडरवेट हो रहे हैं. ठीक है, एंड इट इज फर्दर जो है वो हैम्पर कर रहा है उनकी प्रॉपर चाइल्डहुड डेवलपमेंट को. ठीक है, सो यू कैन सी दैट हाउ दिस इज डेंजरस, द इफेक्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज. सो दिस इज द
दिस फिगर इट इज एक्सेप्ट फ्रॉम द लैंसेट जर्नल एंड यू कैन सी दैट जब प्री नेटल स्टेज में होंगे, ठीक है, तो हाउ दिस एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम जो क्लाइमेट चेंज है हाउ इट इज इफेक्टिंग द प्रूफ मीन्स पूर्व प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, लाइक जैसे कि लो बर्थ वेट हम बात कर रहे थे, ठीक है, या प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाएगी, ठीक, प्री टर्म डिलीवरी, ठीक है। देन अनदर इज अगर लो बर्थ वेट है एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट एंड नियोनेटल डेथ, तो डेट मे लीड टू डेथ आल्सो समटाइम्स, ठीक है। और जब वो मतलब ये तो हो गया प्री नेटल स्टेज में, और इन्फेंसी स्टेज में क्या होगा कि हाई रिस्क होगा, जो हाई हीट होगा या हाई कोल्ड होगा, तो उससे क्या होगा इलनेस का रिस्क होगा बच्चों में, ठीक है, जो उस स्टेज में जो बेबीज पैदा हुए हैं, ठीक है, विच आर ऑलरेडी मालनरिश्ड, ठीक है, एंड दे आर देयर बॉडी जो है दैट वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल द एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, ठीक है। एंड इससे क्या होगा कि जो दूसरी बात है कि जो इन्फेंसी स्टेज में ड्यूरिंग दैट स्टेज देयर विल बी हाई रिस्क ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस, ठीक है, बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम वुड बी वेरी वीक। एंड जब वो चाइल्डहुड में एज में पहुंचेंगे तो उस टाइम में क्या होगा कि इट विल कॉज द लंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, और अस्थमा अटैक्स दीज थिंग्स। एंड देन जब वो बाहर घूमेंगे या बाहर जाएंगे दैट विल लीड टू एक्सपोजर टू द रिस्क ऑफ अदर डिजीजेस, ठीक है, जैसे कि लाइम डिजीज है, ठीक है। और ड्यूरिंग द एडोलेसेंट एज में क्या होगा कि पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस या एंजाइटी होगी, ठीक है, या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का कि डेफिनेटली फ्रॉम द चाइल्डहुड इफ यू आर अफेक्टेड मालनरिश्ड योर ब्रेन डेवलपमेंट इज नॉट प्रॉपर, तो डेफिनेटली इन द एडोलेसेंट एज इट विल अफेक्ट योर means education, your school performance, your outdoor activities, your economic status, and it will also affect your playing sport activities also, definitely. So it's see that how dreadful is this. And irony is, you see the irony of this climate change, that these mothers, yeah, these children, they have paid means you can say they have no role in actually in the no contribution in this climate change actually, but actually these are the main target of the climate change. See, this is the irony, ठीक है, कर कोई रहा है भुगत कोई रहा है, but ठीक है। So here this study it also says that it's an example of the climate injustice because these mothers and these communities are very very far from the deforestation frontiers in the Amazon, and they have contributed very little to the climate change, but they are being hit first and worst, ठीक है। तो इनका तो ये तो क्लाइमेट चेंज नहीं कर रही है, तो डिफोरेस्टेशन कर नहीं रहे हैं, ये तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में इनका कोई रोल नहीं है, जो इस रीजन में पीपल रह रहे हैं, ठीक है, या अनबॉर्न बेबीज का क्या रोल है क्लाइमेट चेंज में, ठीक है, बट दे आर बीइंग अफेक्टेड बर्स्ट एक्चुअली, ठीक है। सो डेफिनेटली वी नीड टू थिंक केयरफुली, वी नीड टू think significantly how to significantly put a curb on the emissions of greenhouse gas so that we can give a healthy environment to live to our next generation, ठीक है। सो अभी लास्ट में अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि अभी इसी वीक की बात है कि एक और जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं बोल्सोनारो, ही वाज ऑन ए विजिट टू द नेबरिंग स्टेट ऑफ एकड़, जहाँ पे भी अभी भी जो फ्लड की इमरजेंसी घोषित की गई है वहाँ पे ड्यू टू द हैवी फ्लडिंग की वजह से, ठीक है। एंड स्टडी में ये भी बोला जाता है फर्दर कि जो लोकल पीपल है ना कि वो दे आर अडेप्टेड टू द लाइफस्टाइल, जो उनका लाइफस्टाइल होता है दैट इज अडेप्टेड टू द क्लाइमेट चेंज टू सम एक्सटेंट, बट जो एक्सट्रीम जो हो रहा है एक्सट्रीम केसेस हैं उसके लिए, जैसे कि हाई बहुत ज़्यादा रेन फॉल हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है, तो उसके लिए तो दैट इज ऑल्सो बियॉन्ड देयर अडेप्टिव कैपेसिटी से परे है उनके भी, ठीक है। सो एक्चुअली मेन रीजन है कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल नेग्लेक्ट है, जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं they are neglecting these things, and okay, so long term political neglect of these regions like Amazonia and uneven development in these regions that need to be addressed actually to tackle the double burden of this climate change and health inequalities actually. So we need to intervene, means the government policies should make the policies like that, and for the development, and the policy should be like that there should be proper transport facilities so that their children can go to the schools, and there should be proper food security arrangement also for these people, so that they should be above the malnutrition, sorry, and definitely early there should be we should impose some early warning systems of the floods, okay। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम भी कोई छूते नहीं है, we are also facing the मतलब dreadful results or catastrophic results, we can say. I will give you more example in our next lecture that about the situation of India in climate change. We are also at the
वी कैन से दैट इन द रेड जोन, डेंजर जोन में, ठीक है। तभी एक रिपोर्ट के अनुसार जो 2016 में ही इंडिया में ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ PM 2.5, जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर 2.5, मोर देन 5 लाख पीपल्स दे लॉस्ट देयर लाइव्स. So you see that high level of PM 2.5 contributed to over more than 5 lakh premature death in India during 2016 में, ठीक है. So how you see that how means catastrophic, dreadful is this climate change and what we are doing to our planet actually. It's mainly anthropogenic human activities. So in another news in context this, एक और एग्जांपल की बात करें तो एक और न्यूज थी अभी कि at least 1500 Britons, जो ब्रिटेन के पीपल हैं, they were killed by the climate change in the past century में, ठीक है. तो ये स्टडी में ये फाइंड आउट किया गया कि जो मोर देन 500 मिलियन जो घर हैं ब्रिटेन में, ठीक है, इंग्लैंड में, दे आर अंडर द हाई रिस्क ऑफ द फ्लडिंग ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज एक्चुअली करंटली, ठीक है. दे आर एट द हाई रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड दे हैव फाउंड दैट इन द पास्ट सेंचुरी में, जब उन्होंने डाटा एनालाइज किया फ्रॉम द 2000 से लेके अभी तक का 2020 या 2019 तक का, तो दे हैव फाउंड दैट एटलीस्ट 1500 डेथ जो हुई हैं ब्रिटेन में, that can be directly linked to the climate change since 2000, ठीक है. since 2000 के जो लगभग 15 that's we can directly rate them with the effect of the climate change, ठीक है. क्योंकि आपने भी सुना होगा कि हीट वेव्स आई थी जबकि यूरोप में, ठीक है, हीट वेव्स आई, ठीक है, सीवियर हीट वेव्स आई, ठीक है, एंड कुछ फ्लड्स भी आए, 4 मेजर फ्लड्स आए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड में ब्रिटेन में, एंड 2 हीट वेव्स आई हैं, जैसे कि हीट वेव्स ऑफ 2 डेडली हीट वेव्स आई थी 2003 में और 2018 में आई थी, ठीक है, हीट वेव्स जो कि आपने देखा होगा हीट एंड यूरोप के रीजन में, एंड 4 मेजर फ्लड आए थे 2016 के बीच में वहाँ पे. सो विच हैव लेड टू द मींस अबाउट एंड लॉस ऑफ $18 बिलियन, ठीक है, अगर हम पोस्ट वाइज बात करें, और जो 1500 डेथ्स जो हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द इफेक्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, ठीक है. So in this that we should cope up with this Paris Agreement at least, that according to 2015 that Paris Agreement, इसमें ये कि डिसाइड किया गया था कि which aims to limit the global warming to well below 2 degrees Celsius compared with the pre-industrial levels. More than 190 countries must submit action plans. जो country must submit the action plans that what they are doing to cope up with the climate change, to combat the climate change, and they should include not just the target to reduce the climate heating emissions. मतलब ऐसा नहीं है कि जो ग्रीन हाउस गैस emissions है उसको कम करो, बट उनको ये भी साथ में अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि हाउ टू मेक द पीपल अडेप्ट टू दोज क्लाइमेट वैगरीज, ठीक है, सो दैट देयर विल बी लेस लॉस ऑफ द लाइव्स, ठीक है, ताकि जो डैमेज है वो कम हो. तो साथ में एमिशन को कम करने के साथ साथ वी नीड टू थिंक about द पॉसिबिलिटीज, वी नीड टू थिंक about द अरेंजमेंट सो दैट वी कैन अडेप्ट टू द, ताकि हम अडेप्ट कर सकें उस चीज को, ताकि जो लाइफ का जो लॉस है वो कम होगा, ठीक है. सो जैसे कि मैंने बताया कि ये भी जो ब्रिटेन में जो राइस जो लेवल है, सी लेवल है, डेट हैज इंक्रीज्ड, मतलब जो राइज हो गया है अबाउट 16 सेंटीमीटर, मतलब 6 इंच का जो आपके जिसने सी लेवल में राइज हुआ है ब्रिटेन में सिंस 1990 अभी तक का, ठीक है. सो डेट्स वाई मोर देन 5.2 मिलियन होम्स जो है ब्रिटेन में, दे आर अंडर द रिस्क ऑफ हाई फ्लडिंग, ठीक है. सो इन दिस कंटेक्स्ट आई कैन से दैट you can see that how dreadful are these results. You can cite these examples in your any questions which is related to the climate change effects, ठीक है. अभी करंट सेंचुरी में these are the recent examples हैं. So you can see that definitely we need to put the curve on the emission of greenhouse gases. We need to combat the climate change and we need to take the significant steps and serious steps, ठीक है, so that we can give a healthy planet for our next generation, and so that it is important for the survival of the human race. After all, it's the matter of our survival of our civilization, ठीक है. With this, I would like to end today's lecture with the quote of जो कि फ्रैंकोइस होलैंडे, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रांस के, that we have a single mission to protect and hand on the planet to next generation, ठीक है. With this, I would like to say thank you. I would like to end today's lecture. I hope you might have find interesting, and definitely please share, like, and subscribe our channel. And with this, I would say thank you very much. Stay happy, stay blessed, and please try to stay with the work in harmony with the nature. Thank you.